Very good morning to all of you. This is Abhilasha Ramata, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 3 from your book Political Science. The name of your chapter is Electoral Politics. In our previous class, we discussed about the what is our election system, and under that we talked about electoral constituencies. Okay, how electoral constituencies are divided in India. After that, we talked about reserved constituencies. There are total 543 Lok Sabha constituencies are there in India, and from that 543 constituencies, we have 84 reserved for scheduled castes and in 47 reserved for scheduled tribes. So now just look at this map of India. I already explained this map to you. So this white portion, the white portion which you are looking at your screen is the map of the India, which is representing or showing the total constituencies of India, how it is divided into different constituencies. So there are 543 constituencies, and out of that 412 are general. 84 seats are reserved for SC and 47 seats are reserved for 47. ठीक है? Total Rajasthan में total कितने constituencies है? There are 25 constituencies. We are talking about Rajasthan because we live in Rajasthan, so we should know ना. At least we should know about the constituencies from our state. So Rajasthan की total constituency कितनी है? 25 constituencies है. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ questions दे रखे हैं, वो देख लेते हैं. What is the number of Lok Sabha constituencies in your state and neighboring 2 states? So now who will tell me? Our state is Rajasthan. ठीक है? There are 25 constituencies in our state in Rajasthan. Neighboring 2 states, neighboring कौन-कौन से states हैं? कौन बताएंगे? Any 2 neighboring states of Rajasthan? Yes, Divisht. Yes, Divisht. मैम पंजाब एंड गुजरात. पंजाब एंड गुजरात. वेरी गुड. तो पंजाब के कितनी है देखते हैं. पंजाब की आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है टोटल 13 है, और गुजरात की है 26 है बेटा. 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है आपका, which state have more than 30 Lok Sabha constituencies? Which states have more than 30 Lok Sabha constituencies? कौन से constituencies, कौन से ऐसे states हैं जहाँ पे 30 से भी ज्यादा लोग constituencies है? Who will tell me this? Vanchika Chauhan, can you please unmute your device? Yes, Vanchika. Yes, Vanchika. Vanchika. Bhuvan. Divyanshu. Divanshu, your headphone is not not connected properly. I don't get your voice clearly. No, it's not clear. I'm getting echoing. Your voice is echoing. Good morning, class. Okay, so now our next question which we were discussed was, why do some states have such a large number of constituencies? Who will tell me this? कोई बताएगा मुझे? Why do some states have such a large number of constituencies? So some states have such a large number of constituencies because the population of that particular state is very high. So this constituency
this constituency is like divided on the basis of the population कि कितनी population रहती है, कितनी population है उस particular state की, and on that basis आपका जो ये constituencies है divide होता है. So that's why देखिए we have high बिहार में 40 constituencies है, आपके महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है. उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकॉज उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. Okay, so due to the population of the country, due to the population of that particular state, large population of that particular state, we have like such a large number of constituencies in some states. Okay, so now next question is why are some constituencies small in area while others are very big? ठीक है, कुछ constituencies हम देखते हैं ये काफी, देखो ये अगर आप गुजरात का ये वाला एरिया देखो तो ये तो काफी बड़ा है, वही वहां पे ये वाला एरिया देखो तो इतना छोटा सा है. तो ये कुछ एरियाज जो है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरियाज काफी बड़े और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज काफी छोटे. तो अगेन इसका आंसर यही है ड्यू टू द पॉपुलेशन. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है. तो ये जो ये रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला जो ये सॉरी रन ऑफ कच्छ का एरिया है, ये वाला एरिया है आपका जैसलमेर के पास वाला जो एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है कंपैरेटिवली, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये बाउंड्रीज बनी हुई होती है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है और वहां से आप क्या करते हो, आप constituencies बनाते हो. So that's why some constituencies small in area while others are very big. Next, are the constituencies reserved for the SC and STs evenly spread all over the entire country, or there are more in some area? So the constituencies reserved for the SCs and STs are not evenly spread all over the entire country because it is divided again. It is divided on the population of that particular area. उस particular area में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में रिजर्व कितनी है. तो इट्स डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन सी रिजर्वेशन, जैसे जो आपकी शेड्यूल कास्ट है वो कहाँ रह रही है, शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ रह रही है, वहाँ पे उसकी कितनी पॉपुलेशन है और अकॉर्डिंगली वो रिजर्वेशंस क्या की जाती है, रखी जाती है, ठीक है. सो नाउ our next topic is what we were discussing about the voters list. ठीक है, क्या है हमारा voters list? So in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called electoral roll or the voters list. आप सबने देखा होगा जब वोटिंग होती है, अपने घर में भी देखा होगा, ठीक है, कि आपके घर पे बहुत सारे जैसे ना मेंबर्स वगैरह आते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी एज, कि आपके घर में कौन कौन रहता है, उनकी एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसे. तो उस टाइम पे वोटर्स लिस्ट भी बनती है. तो हम जब भी इलेक्शंस होता है तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए, इंडिया में जो एलिजिबल जो एडल्ट एज है, एलिजिबल एज है वो है 18 और अबव. 18 और अबव जिसकी भी 18 और उससे ज्यादा की एज है वो इंडिया में एलिजिबल हो जाता है वोट देने के लिए, ठीक है. सो और ये जो इलेक्टोरल वोट या जो ये वोटर्स लिस्ट है ना, एक पूरी लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और जैसे ये वाली एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से लोग रहते हैं, उनकी क्या एज है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, और ऐसे करके एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं. और इस लिस्ट को ये लिस्ट जो है इलेक्शन से काफी पहले बन जाती है और सबको दे दी जाती है, और इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट बोलते हैं. This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Obviously this is the important step क्योंकि democratic election में पहली condition यही होनी चाहिए कि candidates की age क्या है, candidate का description पूछा जाता है. So everyone should get an equal opportunity to choose representation. So we all have this
we all have this right, or you can say we all have this right to choose our representative. Those who are of it, those whose age is 18 years or above can choose, they can vote and can choose their representative. According to which law? According to which, according to the universal adult franchise, which is given by our constitution to us. Okay, so class, there is an interesting fact about universal adult franchise. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी लॉज बने थे, सबको बहुत इलेबोरेटली जो है डिबेट किया गया था, ठीक है, डेलिब्रेट किया गया था, डिस्कस किया गया था। बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसा ओनली लॉ है जिसको डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि सब लोग इस चीज को लेके रेडी थे कि यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमें राइट टू वोट तो सबको देना ही है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन वोट, एक वोट होगा और हर एक वोट का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो रिच है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास 2 वोट्स होंगे, ठीक है, जो आपके मिडिल क्लास है या कॉमन सिटीजन है उनके पास 1 वोट होगा। ऐसा नहीं होगा। 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। No one should be denied the right to vote without a good reason, ठीक है। अब with a good reason, अब कोई क्रिमिनल है, ठीक है, जो टेररिस्ट वगैरह मान लिया गया है जिसको, अब उसको राइट नहीं मिलेगा। बट बाकी जितने भी सिटीजन है इंडियन के, उनको डिनाई नहीं कर सकते आप राइट टू वोटिंग। दिस इज योर फंडा, यू कैन से दिस इज योर वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू वोट। Different citizens differ from one another in many ways. Obviously, different. We all are human beings, and we are unique creatures. So डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। हम सब एक दूसरे से काफी अलग है। आप अभी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब एक दूसरे से काफी अलग हो, ठीक है। आप मुझसे काफी अलग हो, आप दिव्यांश से काफी अलग है, ठीक है, कनिष्क नंदनी से काफी अलग है। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस और हमारे सोचने का तरीका, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी हॉबीज काफी डिफरेंट होती है। तो जस्ट लाइक दैट, डिफरेंट सिटीजन, ऑब्वियसली अलग अलग सिटीजन, हम अलग अलग सिटीजन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। So in our country, all citizens aged 18 years and above can vote in an election. 18 years और या फिर 18 years से above आपकी एज है, तो you can vote in this country. Every citizen has the right to vote. We have this right to vote regardless of his caste, religion, gender. ठीक है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, या फिर नॉर्मली इस जेंडर के हो तो आपको वोटिंग राइट नहीं है। नो, एवरीवन जो इंडियन सिटीजन है उसके और उसकी एज 18 इयर्स है, उसके पास ये राइट है, राइट टू वोट का। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको एक इंडियन सिटीजन होना है और आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 इयर्स होनी चाहिए। बस एक ये सिंगल क्राइटेरिया है जिससे कि आप वोट, जिससे कि आपको ये राइट मिलता है, राइट टू वोट का। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in a rare situation. ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स हो गए, या फिर मैंने जैसे आपको टेररिस्ट का बताया, ठीक है, कोई क्रिमिनल हो गया, टेररिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही एक्सट्रीम उसने वो क्राइम किया है, ठीक है, उनको ये राइट टू वोट का जो है राइट टू वोट नहीं दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। बट ऐसी सिचुएशन में काफी रेयरली होती है। It is the responsibility, sorry, it is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, उनको वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड करें, ठीक है, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं। अब वो ऑब्वियसली डेथ्स भी, अगर जो लास्ट इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स की डेथ हो गई हो, तो उनका नेम रिमूव करना। और बहुत सारे अब आज से 5 साल पहले हुए थे इलेक्शन, एक एग्जांपल दे दूं कि आज से 5 साल पहले इलेक्शन हुए, तो 5 साल में बहुत सारे कैंडिडेट्स की डेथ भी हो गई, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हो गए जो जिनकी एज क्या हो गई, 18 हो गई है या फिर इससे अबव हो गई है। तो दे हैव दिस राइट टू वोट। वोट का राइट है उनको वोटर्स लिस्ट में या फिर इलेक्टोरल रोल में उनका नेम इंक्लूड करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ government. Okay. Now, in the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced.
The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for the someone else. But the card is not compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card, driving license, Aadhaar card, etc. ठीक है। अब कुछ सालों में क्या कर दिया गया है कि जितने भी वोटर्स होते हैं ना, उनको एक ये दे दी जाती है, एक इलेक्शन फोटो। आपने वोटर आईडी कार्ड दिया देखा होगा, तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू लुक एट द इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर पेरेंट्स, और कल मुझे बताना कि आपने क्या देखा। एक एग्जाम्पल, एक देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने, दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मे बी हल्का सा डिफरेंट हो सकता है, बट नॉर्मली आपकी देखो स्टैम्प होगी, आपकी पिक्चर होगा, एक आपका यूनिक कोड होगा, आपका नेम, फादर का नेम, आपके सेक्स, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई भी होगी, और ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जितने भी वोटर्स हैं उनको ये कार्ड अपने साथ रखना होता है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, अभी तक कंपल्सरी नहीं किया गया है। और भी दूसरे आपके आइडेंटिटी कार्ड जो है, आप वो क्या कर सकते हो, वोटिंग देने जा रहे हो तो लेके जा सकते हो, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एक्सेट्रा। ठीक है। सो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। So now our next topic is nomination of candidates. This is the next step under what is our election system. ठीक है, हमने अभी तक क्या कर लिया कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई थी, फिर हमने वोटर्स लिस्ट को पढ़ा था। ठीक है, वोटर्स लिस्ट पढ़ा हमने, वोटर्स लिस्ट के बाद हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर्स लिस्ट, एंड हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये जो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है ये लास्ट टॉपिक है। नहीं, इसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। In our next class, we will discuss about nomination of candidates. So go through this chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know. Okay? So I am like winding up this class right now. If you face any problem, do let me know.